Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Right to Information 2005 and its amendment in 2019. It is part 1 from section 1 to 11 I will discuss. So my friends, please like my video, share my video and comment my video. So second part hastily I will upload. So my friends, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Examination point of view, this video would be very useful for you. And in Navodaya Vidyalaya Samiti, principal examinations and vice principal examination is around the corner. And also for any other examination also this topic is very important one. So now I am going to discuss Right to Information 2005 and its amendment in 2019. It's part 1 section 1 to 11. You see, some important informations first I want to discuss in examination point of view. First country to implement the right to information, it is Sweden in 1766. RTI passed in the Lok Sabha, it is 11th May 2005. RTI passed in the Rajya Sabha very next day, 12 May 2005. President approved the RTI, it is 15 June 2005. And RTI came into force 12 October 2005. Very important one. When it was passed in the Lok Sabha and when it was passed in the Rajya Sabha, when it was approved by the Honorable President, and when this act came into force. So came into force, it is 12 October 2005. And first country implemented RTI, it is Sweden in 1766. It's a very important one, try to remember. Next one, the first state in India enact the RTI Act. First Tamil Nadu in 1997. It is very important one. So the first state in our country enacted RTI, Tamil Nadu. The first state in India to try to implement RTI, it is Karnataka 1988. जो फर्स्ट स्टेट है कर्नाटका, वो ट्राई किया था आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मगर एक्चुअली द फर्स्ट स्टेट एनाक्टेड द आरटीआई इट इज़ तमिलनाडु. बट कर्नाटका का बात आएगा तो वो फर्स्ट पहले ट्राई किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1988 में. द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू एनाक्ट द आरटीआई इट इज़ गोवा, राइट. Number of states in India had implemented the RTI Act before 2005. It's 9 states, you remember. Okay, before enacting RTI Act 2005, 9 states already implemented the RTI Act before 2005. RTI movement was initiated in Rajasthan by MKSS, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. It's a very important one. You see, RTI movement was initiated in Rajasthan. First you remember the state name, and which organization actually initiated the RTI movement. It is very important one. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. Year 1994. Reason to fight against local corruption and exploitation. Clear, 3 things you remember. So first organization initiated movement related to the RTI. It is Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, belongs to Rajasthan, year 1994, and reason for movement to fight against local corruption and exploitation. Very important one, examination point of view. Next one, before RTI Act, one act was there. It is Freedom of Information Act 2002. It is very important one. Before RTI Act, it was Freedom of Information Act 2002, and in 2005 the Right to Information Act replaced it. It is very important one, examination point of view, remember. RTI Act overrides Official Secrets Act 1923. You remember Official Secrets Act
ईयर ऑल्सो यू रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसा कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में क्या है, फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री टू इट मीन्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री, क्लियर। सम इंफॉर्मेशंस एक्चुअली it is against of the integration, it is against of the country and state। so ऐसा कुछ ऑफिशियल मैटर्स है, बहुत सीक्रेट होता है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जो आरटीआई एक्ट आया वो ओवरराइड किया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अप्रूव्ड आरटीआई एक्ट, क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्चुअली एट दैट टाइम व्हेन आरटीआई एक्ट वाज अप्रूव्ड, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? Honorable President Dr. APJ Abdul Kalam approved RTI Act on 15th June and it came into force on 12th October 2005. Okay, already I have discussed. The idea of RTI Act in India was floated by Prime Minister of India Sri VP Singh in 1990. This is very important word. The idea of RTI Act in India was floated by Prime Minister ऑफ इंडिया श्री वीपी सिंह इन 1990। ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आपको याद रखना है, राइट। चलो अभी हिस्ट्री ऑफ आरटीआई, हिस्ट्री ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन को चलेंगे। आरटीआई स्टैंड्स फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। बिफोर आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a) of the Constitution. This article you remember, Article 19(1)(a) of the Constitution. It says that every citizen has freedom of speech and expression. तो आरटीआई एक्ट के पहले ऑलरेडी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो फंडामेंटल राइट का एक पार्ट था, जो आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट एवरी सिटीजन has freedom of speech and expression। ये आर्टिकल को रिमेंबर करना है, राइट। आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए, क्लियर। आरटीआई मैंडेट टाइमली रेस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। ये तो कॉमन चीज़ है, जब कोई सिटीजन उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तब वो थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन वो कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। ओके, सो द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज ऑलवेज वांट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके, बेसिकली फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये है आरटीआई मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 1 को देखेंगे। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, अभी 370 आर्टिकल ऑलरेडी अबोलिस्ड। तो ये जो आरटीआई एक्ट है अभी लगभग सभी स्टेट्स में लागू है। आरटीआई एम्पावर्स एवरी सिटीजन टू सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर्स एंड पब्लिक अथॉरिटी। तो ये एक राइट है, कोई भी एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री उनका राइट है। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है कि कोई ऐसा कुछ डाटा चाहिए, वी वांट टू कलेक्ट सम डाटा, ओके, वी वांट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, वी आर हैविंग राइट, ओके, टू कलेक्ट डाटा थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। सम इंफॉर्मेशन विच आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हिसाब से ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई में मांगेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आगे में मैं उसको डिस्कस करूँगा, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और बेसिकली ऐसा कुछ मैटर्स है जो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। क्लियर, सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल है। अदरवाइज जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ये एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट आरटीआई फील्ड बाय शहीद राजा बुर्नी, इसको भी याद रखिए। फर्स्ट आरटीआई फील किए थे शहीद राजा बुर्नी टू ए पुलिस स्टेशन इन पुणे। ये दो चीज़,
जो पुलिस स्टेशन पुणे में पहला आरटीआई शहीद राजा बुर्नी ने अप्लाई किया था, फाइल किया था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन 1 में चला गया। सेक्शन 2 में कुछ सेक्शंस देखेंगे। जो सेक्शन 2F है, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंफॉर्मेशन, सो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को याद रखना है। तो किस सेक्शन में ये क्वेश्चन अभी आ रहा है एग्जामिनेशन में, राइट? तो सेक्शन 2F में है डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक अथॉरिटी कुछ प्राइवेट बॉडी का इन्फॉर्मेशन को असेस करता है, तभी भी उसको पब्लिक अथॉरिटी वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स। ये सब इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल, वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल फॉर्म में है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ओके, हम उसको इट मीन्स आरटीआई एक्ट के हिसाब से हम मांग सकते हैं। और है, यदि पब्लिक अथॉरिटी कोई प्राइवेट बॉडी को असेस करता है, जैसे बीडर्स, सपोज कुछ प्राइवेट बीडर्स है, अच्छा, बेसिकली सपोज हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कुछ बीडर्स के बारे में, तो पब्लिक अथॉरिटी एक्चुअली वो बीडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, बेसिकली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो बीडर्स को दिया गया है बेसिकली सप्लाई करने के लिए, गुड्स सप्लाई करने के लिए। सपोज हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बीडर के बारे में, ओके, तब हम आरटीआई डालेंगे, हम पब्लिक अथॉरिटी से मांगेंगे, तो पब्लिक अथॉरिटी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा बीडर से और हमको देगा, तो वो थर्ड पार्टी हो गया। यहाँ पर बीडर थर्ड पार्टी हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी पब्लिक अथॉरिटी असेस करता है कोई प्राइवेट बॉडी का इन्फॉर्मेशन, तब वो दे सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 2H, इट इज डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी or institution of self government established or constituted by or under the constitution, by any other law made by parliament, by any other law made by state legislature, and last one by notification issued or order made by the appropriate government and includes any। तो यहाँ पर याद रखिए, जो public authority means any authority or body or institution self government established or constituted, आपको by or under the constitution, by any other law made by parliament, by any other law made by the state legislature, or by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any body, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, includes anybody owned, controlled and substantially financed। कोई भी ऐसा बॉडी है owned, controlled by the government and also substantially financed by the government। और ऐसा कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको पब्लिक फंडिंग मिलता है, ओके, दोज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर गेटिंग गवर्नमेंट फंड्स, वो भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। तो बेसिकली लगभग है जहाँ पर गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, कोई भी बॉडी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग होता है, चाहे पार्शियली फंडिंग होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बॉडी से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो भी बॉडी की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडिंग करता है, ओके, सो बेसिकली जस्ट यू रिमेंबर फुली और पार्शियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सेक्शन, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2J एफ में सेक्शन 2F इंफॉर्मेशन था, सेक्शन 2H जो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में था, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन 2J में राइट टू इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया गया है। Right to information means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority and includes the right to, देखिए यहाँ पर right to information में ये सब
ये सब को हम आरटीआई एक्ट के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, ये सबको, वीडियो कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, और थ्रू प्रिंट आउट्स वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। ओके, कोई इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, चाहे कोई नोट्स, कोई एक्सट्रैक्ट्स, कोई सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जो डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं कंप्यूटर से। तो ये तरीके से हम सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये क्लियरली राइट टू इंफॉर्मेशन में है। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2J है, सेक्शन को याद रखना है। सेक्शन 2N जो है थर्ड पार्टी के बारे में है। थर्ड पार्टी को मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सपोज आई एम द आरटीआई, सपोज इट मीन्स कंप्लेनेंट, मुझे आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं फर्स्ट पार्टी हो गया। मुझे किससे चाहिए? पब्लिक अथॉरिटी से, वो सेकंड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी और कोई पार्टी है, सपोज ऐसा पब्लिक अथॉरिटी कोई प्राइवेट बॉडी से कुछ इन्फॉर्मेशन असेस करता है, ठीक है, तब हम डायरेक्टली प्राइवेट बॉडी को नहीं मांगेंगे, हम पब्लिक अथॉरिटी को मांगेंगे। पब्लिक अथॉरिटी डाटा कलेक्ट करेगा प्राइवेट बॉडी से, क्योंकि पब्लिक बॉडी प्राइवेट बॉडी से कुछ इन्फॉर्मेशन को असेस करता है। तो हम डायरेक्टली प्राइवेट बॉडी से नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमको पब्लिक अथॉरिटी को इट मीन्स इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे पब्लिक अथॉरिटी से। तो ही एक्चुअली जो जब मैं अभी बताया, एनी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और एनी बॉडी विच इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट और पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, वो आरटीआई के स्कोप में आते हैं, राइट। तो थर्ड पार्टी वो हो गया। सपोज when the public authority assess some information from the private body, directly we cannot collect information from the private body. First we approach to the public authority, then public authority collect information from the third party, it means from the private body, because the public authority has access with private body. तो वो थर्ड पार्टी हो गया। वो थर्ड पार्टी के सेक्शन 2N में है। आगे में थोड़ा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिव्स जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, जो इट मीन 4 ऑप्शंस दे देगा, इसमें मेंशन सपोज क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव, जो आरटीआई एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव आप डिटेक्ट कीजिए, कि इसमें सपोज ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें एक स्टेटमेंट एक्चुअली आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स है टू एम्पावर द सिटीजन्स को एम्पावर करना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इट मीन्स कोई भी रिकॉर्ड हम मांग सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सपोज वी वांट टू नो इट मीन्स वेदर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. So any type of information we can collect from the government departments. So always the government departments they keep all the records in proper manner. So इसी के वजह से जब उनको तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स है, जो भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट फुली फाइनेंशियल फंडिंग देता है और पार्शियली देता है, उनको तो रिकॉर्ड इट मीन्स रिकॉर्ड को अरेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है. ओके, टू कंटेन करप्शन, टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है. इसमें सिटीजन्स एक्चुअली एम्पावर हो गए. वी आर हैविंग राइट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और फ्रॉम द बॉडीज विच आर पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. इसमें क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ गया. हम इससे पता कर लिया कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको गवर्नमेंट पार्शियली फंडिंग करता है, कि ऐसा कुछ बॉडी है जिनको गवर्नमेंट पार्शियली फंडिंग करता है, ओके, उनका काम में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा. और इसमें कंटेन करप्शन भी कंट्रोल हो गया इसके वजह से. और एक है हमारा पार्टिसिपेशन है. हमारा जो राइट टू एक्सप्रेस है वो अभी क्या है, जो अभी मैं बताया था आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए,
एक फंडामेंटल ये राइट है जो हम कभी भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसको कहा जाता है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान से रिमेंबर करना है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट सेक्शन 3 को चलेंगे। सेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 वेरी कॉमन चीज़ दिया है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो भी सिटीजन्स हमारा कंट्री का है उसका राइट है, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। द राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। मगर एनआरआई केस है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, कैन ऑल्सो फाइल आरटीआई बट इन स्पेशल केसेस। जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो सभी कुछ स्पेशल केसेस में वो आरटीआई के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये न्यू अमेंडमेंट में क्लियरली मेंशन है। एनआरआई कैन ऑल्सो फाइल, वो भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं बट इन स्पेशल केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अदर तो 2 कॉमन है, ऑल सिटीजन्स ऑफ द राइट, द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 3 में है जो आरटीआई एक्ट 2005 में। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। सेक्शन 4 इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये वेरी कॉमन चीज़ है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स इन सच मैनर व्हिच फैसिलिटेट्स द आरटीआई अंडर दिस एक्ट। मैं अभी बताया था कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी उनको क्या करना है कि सभी रिकॉर्ड को प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर सीक्वेंस में उनको रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज दे आर हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंस मैनर और इन प्रॉपर ऑर्डर, so that easily it means they can give information to the citizens when the citizens they apply through RTI. Next one, public authority shall publish the information. ये जो दिया है, जब RTI एक्ट हुआ था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था सभी डिपार्टमेंट्स को कि आपको जब RTI एक्ट आया जो केम इन टू फोर्स बेसिकली 12 अक्टूबर 2005, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म किया गया था। सभी डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स बेसिकली दोज ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें उनको इन्फॉर्मेशन किया गया था कि अभी एक्ट आ गया तो 120 डेज के अंदर आपको पूरा रिकॉर्ड्स अरेंज करके रखना है। तो ये था, पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश द इन्फॉर्मेशन विद इन 120 डेज ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो वो जब एक्ट एक्चुअली केम इन टू फोर्स, जब एक्ट लागू हुआ था उस समय कहा गया था सभी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस को कि आपको 120 डेज के अंदर सभी रिकॉर्ड को अरेंज करके रखना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, नेम, डेजिग्नेशंस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एटसेट्रा, ये सभी रिकॉर्ड को अरेंज करके रखना है जब एक्ट लागू हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजंस व्हिच अफेक्ट्स पब्लिक। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है जिनको पब्लिक अथॉरिटी को उसको डिक्लेयर कर देना है। ओके, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, some information related to the important policies, it must be declared by the public authority. तो ये basically this information must be reaching to the people. तो तब लोग क्या करेंगे ना, RTI में नहीं डालेंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो कॉमन पॉलिसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, उसको पब्लिक अथॉरिटी डिस्क्लोज कर देना चाहिए सबके लिए। पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट डिस्क्लोज, इट मीन सम इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज, सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ओके, फॉर द जनरल पब्लिक, उनको डिस्क्लोज कर देना है। तब लोग फिर RTI में इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट। तो चलो सेक्शन 5 में चलेंगे। सेक्शन 5 में डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। सेंट्रल लेवल में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक, सभी डिपार्टमेंट में सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, इन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ओके, इन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आर देयर। कोई भी आप ऐसा डिपार्टमेंट में जाओ उसमें सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स ऑफ PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO सेंट्रल PIO एंड स्टेट लेवल में जो स्टेट डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर स्टेट PIO। तो
पहले क्या है, एवरी डिपार्टमेंट को डिक्लेयर कर देना है कि उनका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है और उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। तो जो थोड़ा एनलार्ज डिपार्टमेंट है वहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी है। तो यहाँ पर PIO है, सेंट्रल PIO, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में उनका काम है कि हम जो RTI डालेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। वैसे स्टेट डिपार्टमेंट्स में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जब भी हम RTI डालेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं अभी बता, जो APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें क्या है ना, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। ओके, तो ये जस्ट यू रिमेंबर, एवरी पब्लिक अथॉरिटी डेजिग्नेट मेनी ऑफिसर्स आज CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 100 days ऑफ एनैक्टमेंट। ये पहले था, जब एक्ट एक्चुअली एनैक्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में, वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था कि 100 days के अंदर एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इन एवरी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को चूज कर देना है। क्योंकि जब भी RTI में इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा तो जो डिपार्टमेंट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो जब एक्ट इनैक्ट हुआ था उस समय उनको कहा गया था कि 100 days के अंदर जस्ट यू मस्ट सिलेक्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, तो ये ऑलरेडी दिस इंफॉर्मेशन गिवन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल लेवल एंड इन स्टेट लेवल। बोथ स्टेट PIO एंड सेंट्रल PIO विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट हु फाइल्स RTI एप्लीकेशन। ये मैं बताया, यदि हम RTI एप्लीकेशन डालेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कोई भी जो भी डिपार्टमेंट को हम जो भी डिपार्टमेंट से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पर हम RTI बेसिकली हम RTI डालेंगे कि इसी डिपार्टमेंट में इसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट का पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर करना है। चलो, सेक्शन 6 में कैसे RTI फाइल किया जाएगा। सेक्शन 6, मैनर ऑफ फाइलिंग RTI और मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू PIO एंड APIO। A person who desires to obtain any information under the act, he can make a request or application either in writing through electronic format in English or in Hindi or official language of such area। तो सपोज हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम RTI एप्लीकेशन जो है वो टाइप्ड फॉर्मेट में इंग्लिश में कि हिंदी में कि ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको फिलअप कर सकते हैं, और अभी तो ऑनलाइन में हम डाल सकते हैं। तो इसमें फ़ी क्या होगा देखेंगे। ए पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ़ी है ₹10 है। और ये फ़ी कैसे दिया जाएगा, चाहे डिमांड ड्राफ्ट, सपोज आप फिजिकली आप डालना चाहते हो एप्लीकेशन टाइप्ड फॉर्मेट में, तो आपको वहाँ पर जो फ़ी ₹10 देना पड़ेगा वो डिमांड ड्राफ्ट, चेक और पोस्टल ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो फी फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जो भी पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो BPL पीपल है, वो जब RTI में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वो RTI डालेंगे, उनको कुछ फ़ी देना नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देयर इज़ नो फीस फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अदर्स के लिए क्या है, ₹10 है। ऑनलाइन में भी वैसा है, थ्रू ऑनलाइन सपोज इफ़ यू वांट टू अप्लाई, देन ऑल्सो इट मीन्स यू कैन पे थ्रू बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग, और जो मोड्स है थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड आप भी दे सकते हो। An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information। आप जब जो एप्लीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एप्लीकेंट कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है वहाँ पर वो रीजन नहीं देगा कि इस रीजन के वजह से, इस कारण के वजह से मुझे RTI इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information। और वहाँ पर ये नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि एप्लीकेंट उसका पूरा डिटेल्स देगा, ओनली उसका फ़ोन नंबर और मेल ID दे सकता है, क्योंकि जो RTI का जवाब आएगा वो मेल में, और बेसिकली मेल में आएगा तो मेल तो देना ही है, और अदर कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन एड्रेस कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है। तो एन एप्लीकेंट इज नॉट नीडेड टू गिव पर्सनल डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डिटेल एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। सपोज आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसलिए फ़ोन नंबर और मेल ID आपको देना है। ओके, अदर कोई ऐसा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है।
यहाँ पर कुछ फ़ी है, देखिए एक्स्ट्रा फ़ी ₹2 फॉर ईच पेज क्रिएटेड और कॉपीड A4 इन A4 और A3 साइज पेपर, ₹2 एक्चुअल चार्ज और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी इन लार्ज साइज पेपर। ओके, एक्चुअल चार्ज देना, एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस फॉर सैम्पल्स और मॉडल्स, सैम्पल्स मॉडल्स के लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस देना पड़ेगा। सपोज आप डायरेक्टली जाकर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, इसके लिए पर आवर आपको ₹5 देना पड़ेगा। फास्ट आवर में कुछ आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को जाओगे और वहाँ पर रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करोगे। फास्ट आवर में आप कुछ फीस नहीं दोगे, मगर आफ्टर फास्ट आवर ओके जो भी सेकेंड आवर थर्ड आवर, इसके लिए आपको पर आवर ₹5 पे करना पड़ेगा। नो फी फॉर द फास्ट आवर। नेक्स्ट वन, फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चाहिए, द फॉलोइंग फी हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, ₹50 ये दिया है, ₹50 फॉर डिस्केट और फ्लॉपी। सपोज आपको फ्लॉपी में चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके तो आपको वहाँ पर ₹50 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सपोज प्रिंटेड की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप कुछ कलेक्ट करना चाहते हो और यहाँ पर फ्लॉपी और डिस्केट में आप चाहते हो, तो आपको ₹50 पे करना पड़ेगा। प्राइस फिक्स्ड फॉर द प्रिंटेड पब्लिकेशन और ₹2 पर पेज ऑफ फोटोकॉपी फॉर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पब्लिकेशन। ये सब फी को आपको रिमेंबर करना है। तो इंस्पेक्शन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंस्पेक्शन, आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। फर्स्ट आवर में आपको फ़ी देना नहीं पड़ेगा, मगर नेक्स्ट आवर से आपको ₹5 देना पड़ेगा। और यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सपोज आप कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है आप फ्लॉपी में लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर ₹50 देना पड़ेगा। ओके, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेक्शन 7 में डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप जो कंप्लेनेंट है वो जब थ्रू RTI ही और सी वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ही मस्ट गिव, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ही मस्ट गिव इन्फॉर्मेशन इन मैक्सिमम 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। जब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा, जब आपका रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा, उससे 30 डेज के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो APIO है, यदि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सपोज एब्सेंट है, उसके जगह असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो जब वो रिसिप्ट को कलेक्ट, इट मीन्स आपका जो कंप्लेंट रिसिप्ट है वो जब रिसीव करेगा, उसका 35 डेज के अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा। तो PIO के लिए 30 डेज के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा, API को 35 डेज के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और यदि लाइफ एंड लिबर्टी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इस तरीका का इन्फॉर्मेशन को 48 मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, जो लाइफ एंड लिबर्टी केस में 48 आवर्स के अंदर देना पड़ेगा। अदर केस में PIO 30 डेज के अंदर देता है। 30 डेज कैसे काउंट होगा ना, इट मीन्स रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जब वो आपका कंप्लेंट को रिसीव करेगा उससे 30 डेज के अंदर। APIO 35 डेज के अंदर। यदि थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन है, सपोज जो कंप्लेनेंट है जिसको RTI में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके तो वो फर्स्ट पार्टी हो गया। जो पब्लिक अथॉरिटी है वो सेकेंड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होगा? वैसे मैं अभी बताया था, जो पब्लिक अथॉरिटी वो कुछ प्राइवेट बॉडी के साथ वो बने असेस कर रहा है। जैसे मैं अभी बिडर के ऊपर बोला था, आपको बिडर के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली बिडर के साथ मत कांटेक्ट करो, आप डायरेक्टली पब्लिक अथॉरिटी से आप मांग सकते हो, वो बिडर से इन्फॉर्मेशन लाके आपको देगा। तो यहाँ पर जो RTI डाला वो तो फर्स्ट पार्टी हो गया, एज यूजुअल सिटीजन। सेकेंड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी हो गया। तो थर्ड पार्टी हो गया, जो जिससे पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन असेस करता है, वो थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो, तो आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कितने दिन के अंदर देगा? 40 डेज के अंदर। तो तीन चीज़, नॉर्मल केस में विद इन 30 डेज, APIO देता है तो 35 डेज। ऐसा कुछ लाइफ एंड लिबर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। और कुछ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है तो आपको मैक्सिमम 40 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों को देख लो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड देन PIO एंड APIO हैव टू गिव सुइटेबल रीजंस फॉर रिजेक्शन। यदि आपका जो कंप्लेनेंट है उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सुइटेबल रीजन देना पड़ेगा। फॉर दिस रीजन योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, वो उनको रीजन देना पड़ेगा।
कभी कभी क्या है, जो टाइम्स अभी हम दिया वो टाइम लैप्स कर जाता है, मगर कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। व्हेन द PIO एंड APIO गिव नो रिप्लाई आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, जैसे 30 डेज क्रॉस हो गया, APIO जो 35 डेज के अंदर वो भी क्रॉस हो गया, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन 40 डेज के अंदर देना है मगर वो टाइम लैप्स हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और एक है व्हेन द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, आपको तो इन्फॉर्मेशन तो मिला मगर आप सेटिस्फाई नहीं हो वो इन्फॉर्मेशन से, आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जवाब दे दिया मगर एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द पब्लिक अथॉरिटी, द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड इन रिगार्डिंग टू दिस। तो ये सब केस में क्या है, आप अपील कर सकते हो। अंडर सेक्शन 19 जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर अपील हम कर सकते हैं। द अबव 3 केसेस एन एप्लीकेंट हैज ए राइट टू अपील अंडर सेक्शन 19। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कब हम अपील करेंगे, जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, कि टाइम लैप्स हो जाएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कि जवाब तो दे दिया पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मगर द कंप्लेनेंट क्या है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इस केस में आप अपील कर सकते हो। जो अपील है वो RTI जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का वो सेक्शन 19 में है, आगे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में आएगा सेक्शन 19 के ऊपर, क्योंकि आज जो पार्ट है मैं सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 तक में डिस्कस कर रहा हूँ। चलो इंपॉर्टेंट नोट कुछ देखेंगे। व्हेयर ए रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, द CPIO और SPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं बता चुका हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है बस वहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। एवरी डिपार्टमेंट में, प्रत्येक सेंट्रल डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। आज द केस में भी शैल कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट। सपोज आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो जब आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ पर रीजन्स, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, रीजन्स दिया जाएगा। और ये भी बोला जाएगा कि जब आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि इसी रीजन के वजह से आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और उतना दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो, द पीरियड विद इन व्हिच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन मे बी प्रीफर्ड। तो वहाँ पर भी CPIO और SPIO जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है आपको कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये रीजन है, इसी के वजह से आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उतना दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। और अपेलेट अथॉरिटी कौन होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ओके, क्यों आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, कितना दिन के अंदर आपको अपील करना है, और अपेलेट अथॉरिटी कौन होंगे, किसको आप अपील करोगे, टू होम एक्चुअली यू अपील। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कौन देंगे ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कंप्लेनेंट को देंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी दिल्ली बोर्ड में इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली बोर्ड का जो UPSC प्रिंसिपल एग्जाम अभी हुआ था इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। चलो सेक्शन 8 में ऐसा कुछ मैं बताया था, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और RTI में आप भी मांगेंगे जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर देखेंगे। सेक्शन 8 में है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये मैटर में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, ट्रेड सीक्रेट, ये सब कोई ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है उसको फॉरबिड किया है कोर्ट मना किया है, को वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है इट इज़ अगेंस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये इस तरीके का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट जो पैटेंट रिलेटेड है वो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड एंडेंजर द लाइफ ऑफ फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ऐसा कुछ है जो इन्फॉर्मेशन दे देने से क्या है, कोई एक पर्सन का लाइफ के लिए डेंजर है, ओके, वो इन्फॉर्मेशन देने से क्या है, एक पर्सन का लाइफ के लिए खतरा है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच आर नॉट कनेक्टेड विद द पब्लिक, ऐसा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए नहीं है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंशियल, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो फॉरेन गवर्नमेंट से मिला है और कॉन्फिडेंशियल है, उस तरीके का इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन विच ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे क्या होगा, विच ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट पेपर, ठीक है,
इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो क्या है, इट इज़ ऐसा कुछ होगा तो वो वहाँ पर मैनिपुलेट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विच इज़ कवर्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऐसा कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली जो आरटीआई का स्कोप में नहीं है, इस तरीके का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। Notwithstanding anything in the Official Secrets Act 1923 nor any of the objections permissible, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ पब्लिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट माने हम कंपेयर करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट और बेसिकली हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट माने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, ऐसा कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, मगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको देना चाहिए, तो उस तरीके का इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली उतना खतरा नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, मगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो बहुत अच्छा है। ओके, बेसिकली सम इन्फॉर्मेशंस इट मीन्स विच आर नीडेड बाय द पब्लिक एंड ऑल्सो इट इज़ लेस थ्रेटनिंग, ओके, बेसिकली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो उस तरीके का ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फेवरेबल होगा और उतना जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होगा। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है, बोलते हैं कि जो हम आरटीआई मांगते हैं तो इट मीन्स कितना ईयर्स का हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 20 ईयर्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, 20 ईयर्स अभी आप आरटीआई में मांगते हो ना, 20 ईयर्स के अंदर कोई भी आप जो रिकॉर्ड्स है पब्लिक अथॉरिटी को मांग सकते हो। एनी इवेंट हैपन 20 ईयर्स बिफोर द डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बार क्वेश्चन आया है। एनी इवेंट हैपन 20 ईयर्स बिफोर द डेट ऑन विच एनी रिक्वेस्ट इज मेड शैल बी प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट। तो विद इन 20 ईयर्स एक्चुअली कोई भी इंफॉर्मेशन है आप पब्लिक अथॉरिटी को मांग सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर थोड़ा अमेंडमेंट देखेंगे, जो 2019 के ऊपर अमेंडमेंट आया है, इसमें 3 सेक्शंस में एक्चुअली मॉडिफिकेशन किया गया है। एक सेक्शन 13, सेक्शन 16 और एक है सेक्शन 27। ये तीनों को आपको याद रखना है। तो कौन सा सेक्शन में एक्चुअली अमेंडमेंट आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 13, सेक्शन सॉरी और एक बार देखिए, सेक्शन 13, सेक्शन 16 और आरटीआई सेक्शन 27 में ओके मॉडिफिकेशन हुआ है, अमेंडमेंट आया है, उसको देखेंगे। तो जो प्रोविज़न देखिए टर्म सेक्शन 13 में क्या है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CICs एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ओके, जो इंफॉर्मेशन बेसिकली जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सेंट्रल लेवल में, और जो मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 क्या होगा, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स सेंट्रल लेवल में और अलग से स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल में वैसा ही, स्टेट लेवल में क्या है ना, स्टेट लेवल में आपको स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक है, और कितना इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एक्चुअली 10 है, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ओके, वैसा ही सेंट्रल लेवल में एंड स्टेट लेवल में, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या हुआ, उनका जो अपॉइंटमेंट वो कितना, पहले जो आरटीआई एक्ट था 2005, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो एक थे, और मैं बताया इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कितने थे, चीफ तो एक था, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कितना है, मैक्सिमम 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता था आरटीआई एक्ट 2005 में, वो था 5 ईयर्स और द एज ऑफ 65, जो भी आगे में आएगा, ठीक है। मगर अभी क्या हुआ, उसके ऊपर अमेंडमेंट आ गया। अभी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगा, ये पार्ट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स एक्चुअली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वुड बी अपॉइंटेड। ओके, क्लियर, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स shall hold office
फॉर सच टर्म आज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years whichever is earlier। अभी ये 5 years जो था उसको ऑलरेडी अबोलिश कर दिया गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड डिसाइड करेंगे कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बेसिकली स्टेट एंड सेंट्रल दोनों में, ओके, सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, तो सेंट्रल लेवल में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। सिमिलरली स्टेट लेवल में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक चीफ है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो अभी उनका जो टेन्योर होगा वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, बोथ सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल में, याद रखिए। तो उनका टेन्योर डिसाइड करेगा और 65 जो भी आगे में आएगा, उनका टेन्योर एक्चुअली पहले 5 ईयर्स था और एज ऑफ 65 जो भी अर्लियर आता था, मगर अभी क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा बोथ सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल में, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से और इंफॉर्मेशन कमिश्नर से। ठीक है, स्टेट लेवल में अलग है, सेंट्रल लेवल में अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए सैलरी। पहले क्या था, जो आरटीआई एक्ट 2005 देखिए सैलरी क्या था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था उनका सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ समान था। ये सेक्शन 13 में आता है, ये दोनों, ओके, सेक्शन 13 में आता है, तो सैलरी भी सेक्शन 13 में आता है। उसमें जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ समान होगा, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ समान होगा। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 16 में जाइए, स्टेट लेवल में वैसा ही, जो स्टेट लेवल का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनका जो सैलरी था, उनका जो सैलरी स्टेटस था वो इलेक्शन कमिश्नर्स, देखिए CIC इलेक्शन कमिश्नर्स का जो सैलरी था उनका था, और जो स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनका सैलरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ समान था, ये था। मगर अभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट ले आए। नाउ द सैलरीज अलाउंसेस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट CIC एंड ICs विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी क्या हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली वो डिसाइड करेगा कि बेसिकली सैलरीज, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, जो सेंट्रल CIC, ओके, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सिमिलरली स्टेट लेवल में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो उनका जो सैलरी होगा वो पूरा डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। समझ में आ गया। तो पहले ये जो था उसको अबोलिश कर दिया। ठीक है, अभी उनका जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। पहले जो आरटीआई एक्ट में 2005 में था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, जो उनका जो सेंट्रल लेवल में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ समान था, और जो सेंट्रल लेवल में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के साथ समान था। स्टेट लेवल में जो स्टेट लेवल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनका सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ समान था, और जो स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनका सैलरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ समान था। और अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उनका सैलरी क्या होगा। ठीक है, बोथ सेंट्रल का एंड स्टेट लेवल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया सेक्शन 13-16। और एक प्रोविज़न है कि सेक्शन 27 मैं बताया था, 13, 16 और 27, ये डिडक्शन इन सैलरी सेक्शन 27। पहले क्या था, सैलरी जब CIC एंड ICs विल बी डिडक्टेड बाय एन अमाउंट इक्वल, इसके थोड़ा मैं बता देता हूँ। सैलरी जब CIC एंड ICs विल बी डिडक्टेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स बीइंग रिसीव्ड बाय देम इफ एनी, बिल हैज रिमूव्ड दिस प्रोविजंस। इसके क्या है, सपोज कोई जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, सपोज अभी उनको पेंशन मिल रहा है। ठीक है, सपोज अभी उनको पेंशन 60,000 मिल रहा है, अभी उनका अपॉइंटमेंट हो गया यहाँ पर आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पहले वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और अभी रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद वो आज यूजुअल उनको पेंशन मिल रहा है। सपोज पेंशन अभी 60,000 है, सपोज पेंशन अभी 60,000 है। ठीक है,
और अभी वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इंफॉर्मेशन कमिश्नर में उनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो उनका सैलरी जो है सपोज 1 लाख है, तो इसमें उनको ओनली 40,000 मिलता था, क्योंकि 60,000 उनको जो पहले जो गवर्नमेंट जॉब था उसमें उनको पेंशन मिल रहा है, तो वो 60,000 अभी जो उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इंफॉर्मेशन कमिश्नर के में अपॉइंटमेंट मिला, अभी सपोज सैलरी 1 लाख है मगर 40,000 मिलेगा, वो 60,000 को डिडक्ट कर दिया जाता था क्योंकि उनको पेंशन मिलता था। सपोज मेरा एग्जाम्पल में, अभी वो नहीं है, अभी एज यूजुअल उनको पेंशन मिलेगा और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सैलरी जो फिक्स करेगा वो भी मिलेगा। मगर पहले क्या था, उनका पेंशन अमाउंट को अभी जो सैलरी जो आरटीआई एक्ट 2005 में क्या था, जो सैलरी फिक्स हो रहा था आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उस समय उनका जो पेंशन था वो पेंशन अमाउंट को डेबिट करने के बाद वो जितना था उनको मिलता था, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 27 में एक्चुअली अमेंडमेंट हुआ है, राइट। तो ये अमेंडमेंट को अच्छे से देख लीजिए। और ये सेक्शन 11 बेसिकली थर्ड पार्टी के ऊपर है। थर्ड पार्टी के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पर, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्म, जब भी हम कंप्लेनेंट क्या करेगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से चाहिए तो वो तो थर्ड पार्टी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, वो पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो यहाँ पर जब हम आज कंप्लेनेंट व्हेन जस्ट विल इट मीन्स वी अप्लाई आरटीआई, तब वहाँ पर जब सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जब उनको जो कंप्लेन रिसीव होगा तो वो 5 डेज के अंदर वो रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी को। ये दिया है, देखिए, एज द केस में बी सॉल्व विद इन 5 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गिव ए रिटन नोटिस टू सच थर्ड पार्टी। ओके, पहले हम क्या करेंगे, हम आरटीआई डालेंगे। तो जब आरटीआई डालेंगे, आरटीआई डालने से क्या होगा, जब सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो हमारा रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे, तब वो क्या करेंगे, विद इन 5 डेज वो फिर रिक्वेस्ट करेंगे, वो अप्रोच करेंगे थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि हम जो मांगा है वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांगा है। तो कितने दिन के अंदर, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डेज। तो हमारा रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 5 डेज ओके अप्रोचिंग टू द थर्ड पार्टी, ओके विद इन 5 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट गिव ए रिटन नोटिस। वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो रिटन नोटिस देगा थर्ड पार्टी को वो 5 डेज के अंदर देगा। जब हमारा नोटिस को वो एक्सेप्ट करेगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, 5 डेज के अंदर वो नोटिस इशू करेगा थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है, जैसे दिया है, आप पढ़ लीजिए, जैसा कुछ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है कि थर्ड पार्टी ये बोल सकते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन है। और एक है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड और कॉमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्टेड बाय लॉ डिस्क्लोज। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सपोज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेड रिलेटेड है कि कॉमर्शियल सीक्रेट रिलेटेड है, वहाँ पर एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली थर्ड पार्टी का वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मगर और कुछ केस में है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बने, तो इट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ हार्मफुल फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द कंट्री, मगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा है। हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा है और कम हार्मफुल है फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर हम कुछ इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा आपको याद रखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो थर्ड पार्टी ये बोल रहा है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और एक है, बेसिकली जब मैं अभी क्या बताया, जब हम रिक्वेस्ट डालेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जब हमारा रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा, 5 डेज के अंदर वो नोटिस इशू करेगा थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब नोटिस पहुंच जाएगा थर्ड पार्टी के पास, तो थर्ड पार्टी क्या करेगा ना, 10 डेज के अंदर, when the third party receive the request, then within 10 days the third party must inform to the public information officer, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको, यहाँ पर 10 डेज है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ याद रखना है। हम रिक्वेस्ट डालेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर 5 डेज के अंदर वो नोटिस इशू करेगा थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और सिमिलरली जब थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, वो उसको 10 डेज के अंदर
ओके वो जब नोटिस को रिसीव करेगा थर्ड पार्टी, वो 10 डेज के अंदर वो फिर इंफॉर्मेशन देगा पब्लिक अथॉरिटी को, देन पब्लिक अथॉरिटी कंप्लेनेंट को इट मीन्स इंफॉर्मेशन देगा। समझ में आ गया? तो इतना ज़्यादा चीज़ यहाँ पर ये नहीं है, ये 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो है और एक मजा बात है, मैं बताया था इसको, ये जो 40 डेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जब थर्ड पार्टी का मैटर आता है, जब कंप्लेनेंट को थर्ड पार्टी के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 40 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि नॉर्मल केस में 30 डेज होता है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो 35 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा। लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर मैटर है तो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कंप्लेनेंट को। मगर थर्ड पार्टी के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 40 डेज के अंदर हमको इंफॉर्मेशन देगा। ये वही है, और ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। और जो लास्ट है नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3, और यहाँ पर है जैसे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मीन्स मिल गया और वहाँ पर थर्ड पार्टी वो भी अपील कर सकता है। जैसे पब्लिक अथॉरिटी थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन दिया हमको, तो तब थर्ड पार्टी वो अपील कर सकता है, तो वो भी अंडर सेक्शन 19 में है, थर्ड पार्टी भी अपील कर सकता है। ये दिया है, नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3 शैल इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट द थर्ड पार्टी टू हुम द नोटिस इज गिवन, क्योंकि थर्ड पार्टी को नोटिस दिया जाएगा कि आपका इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन दिया था उसको डिस्क्लोज कर दिया गया। आपका जो पब्लिक अथॉरिटी नोटिस देगा थर्ड पार्टी को कि आप जो इंफॉर्मेशन दिया था उसको डिस्क्लोज कर दिया गया कंप्लेनेंट को, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी अपील भी कर सकता है, वो अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है, ठीक है। तो इस सेक्शन 19 जो अपील के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में, मेरा सेकंड पार्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, सेक्शन 12 टू सेक्शन 20। तो आज इतना ही है, उसको अच्छे से देख लीजिए। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, basically comment my videos, share my video, like my video, and please subscribe my video so that you can get notification for my upcoming videos. Now it means I will upload some objectives, because it means some principal exams and vice principal exam of NVS is round the corner, so it would be very useful for you. Please subscribe, comment and like now it means my video and my channel. So thank you and namaskar to all of you.